Dear students, how are you? I am back again with a full-fledged video on education during British rule in India. This is one of the important chapter for standard 8. It is important for CBSE board as well as for Gujarat board. ये chapter हमें क्या कहता है? Let us try to understand, right? Now, this chapter talks about the contribution done by Britishers during the British rule, right? In the field of education, right? Okay. हमें पता है कि हमारा देश कितना समृद्ध था. We were experts in all the fields, right? We were experts in the field of maths, science, technology, astronomy, astrology, physics, chemistry, surgery, yoga, etc. Right? हम इन सारी फील्डों में experts थे during ancient time, right? Now we know various of our experts were there, various of our contributors were there, like Bhaskara was there, Aryabhatta was there, right? Maharshi Patanjali was there, Maharshi Sushruta was there, right? Maharshi Charak was there, Maharshi Kannad was there. Lot many rishis were there, lot many maharishis were there, lot many experts were there, which contributed in the field of science, technology, astrology, astronomy, physics, yoga, Ayurveda, right? Surgery, etc. Right? So in short, I can say we were expert in all the fields, right? And we have contributed to the world during those days. हमने दुनिया को दिया है, हमने वर्ल्ड सिविलाइजेशन को दिया है, and we are proud of it, right? And we are happy also कि हमारे कारण वर्ल्ड सिविलाइजेशन को इतना फायदा हुआ, इतनी प्रॉस्पेरिटी हुई, and we are happy for that, right? Now, what happened after that? उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में it was a phase, it was a time when we were trying to survive ourselves, we were trying to exist ourselves, right? Because I can say during the medieval time, during the medieval period, foreign invasion started on India, right? So because of that, our focus shifted on survival and existence rather than scientific inventions, discoveries and contribution, right? पूरा फोकस शिफ्ट हो गया. जहाँ पे हम कंट्रीब्यूट कर रहे थे साइंस टेक्नोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, वहाँ पे पूरा फोकस शिफ्ट होकर हमारा आ गया सर्वाइवल पे, एग्जिस्टेंस पे, बिकॉज ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स, राइट? ओके. नाउ ड्यूरिंग 14th and 15th century, schools were there, but schools were in the I can say they were working in a casual manner, right? मतलब schools थे लेकिन casually थे. नो फॉर्मल स्कूल्स वेयर देयर, राइट? टीचर्स थे लेकिन उनको पेमेंट टाइम पे नहीं होती थी, उनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं थी, राइट? स्टूडेंट्स जो थे वो उनके लिए कुछ प्रॉपर डिफाइंड स्कूल्स नहीं थे. टीचर्स बेसिकली ट्रीज़ के नीचे पढ़ा दिया करते थे, राइट? टीचर्स को जो पेमेंट मिलता था पेरेंट्स के द्वारा वो फिक्स नहीं हुआ करता था. पेरेंट्स यूज्ड टू पे एज पर द कंडीशन, एज पर द सिचुएशन, राइट? टीचर्स ऑल्सो सपोर्टेड द पेरेंट्स, राइट? यहाँ तक कि ये सीन था कि जब पेरेंट्स को रिक्वायरमेंट होती थी उनके बच्चों की, लाइक ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग टाइम, राइट? उस टाइम पे टीचर्स स्कूल्स रखते ही नहीं थे, राइट? वो वैकेशन या हॉलीडे डिक्लेयर कर देते थे ताकि बच्चे अपने माँ बाप को खेती में, एनिमल हस्बेंड्री में, इन सब में हेल्प कर पाएँ, सपोर्ट कर पाए, राइट? बिकॉज दैट वॉज द टाइम ऑफ सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस, राइट? फाइन. इसके कारण हम पीछे रह गए, राइट? जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना था वो एग्जैक्टली नहीं हुआ. दूसरा, हमारा फोकस चला गया सिर्फ बेसिक एजुकेशन पे. बेसिक एजुकेशन जैसे कि लिटरेचर, लैंग्वेज, बेसिक मैथ्स, बेसिक साइंस, राइट? एंड बेसिक थिंग्स, राइट? उस पर हमारा फोकस चला गया रेदर देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था, इतना पैसा भी नहीं था और हमारी पूरी कैपेबिलिटीज़ खत्म हो चुकी थी सोचने की, टाइम देने की, कंट्रीब्यूशन करने की. बिकॉज अब हमारा फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे चला गया था, वो चीज़ था सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस, right? Fine. Now, in 1757, Britishers came in India, right? इस 1757 में ब्रिटिशर इंडिया में आए and they started doing trade, they started doing business, they started building their revenue, their profit, and they started growing, right? Britishers got lot many opportunities and they started earning lot of money from India, right? But unfortunate part was that even though they were earning lot of money, they were prospering day by day, right? They were
generating, they were increasing their revenue day by day, right? But even though they didn't focused on education, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा था ब्रिटिशर्स का, उनका रेवेन्यू बढ़ रहा था, उनका बिजनेस बढ़ रहा था, उनका सब कुछ बढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने हमारे एजुकेशन पे फोकस नहीं किया, राइट? नाउ टिल 1813 सिनेरियो वाज दिस ओनली, 1813 तक यही सिनेरियो चलता था, राइट? आफ्टर 1813 दे रियलाइज दैट कि दे शुड कंट्रीब्यूट, राइट? So they started planning, they started implementing small ideas to develop the education system of India, right? In fact यहाँ तक हाल था कि 1813 तक जो एक बेसिक उनके पास रिजर्व हुआ करता था 1 लाख रुपीज़ का, वो भी उन्होंने हम पे खर्च नहीं किया, वो भी उन्होंने हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट नहीं किया, राइट? दैट वाज सिनेरियो। मतलब बेसिक पैसा है जो उनको खर्च करना ही था, 1 लाख रुपया साल का, वो भी उन्होंने हम पे खर्च नहीं किया, राइट? That was a scenario till 1813. But after 1813, they realized that they should do something for the in the field of education, and they should contribute. Right? Fine. Now, after 1813, lot many like I can say they started giving education in the basic form. Right? Lot many small schools were initiated. Right? Now, Britishers were having 2 viewpoints. 2 viewpoints थे ब्रिटिशर्स के, एक थे एंग्लिस्टिक और एक थे ओरिएंटलिस्टिक, है ना? अब एंग्लिस्टिक क्या मानते थे? एंग्लिस्टिक ये मानते थे, एक थे ओरिएंटलिस्ट और एक थे एंग्लिसिस्ट, राइट? ओरिएंटलिस्ट ये मानते थे कि भारत के बच्चों का जो एजुकेशन होना चाहिए वो उन्हीं की वर्नाक्युलर लैंग्वेज, उन्हीं की लोकल लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी है, गुजराती है, मराठी है ना, तमिल है, तेलुगु है, उसमें होना चाहिए, ताकि वो अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, हिंदू लॉ को, हिंदू फिलोसॉफी को अच्छे से समझ पाए, और जो कंट्रीब्यूशन वो पहले किया था उन्होंने, वैसा कंट्रीब्यूशन वो आगे भी करें, और उनके नज़र में ब्रिटिशर्स का इम्पोर्टेंस, ब्रिटिशर्स की वैल्यू बढ़े, है ना? साथ साथ में ब्रिटिशर्स को भी इंडियन लॉ, इंडियन फिलोसॉफी, इंडियन माइंडसेट जानने का, समझने का मौका मिलेगा, राइट? सो ये एक माइंडसेट था ओरिएंटलिस्ट ब्रिटिशर्स की, जो ये मानते थे कि भारत के बच्चों को वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में एजुकेशन मिलना चाहिए, मतलब लोकल लैंग्वेजेस में, जैसे कि मैंने बताया आपको, राइट? फाइन, मीन्स हिंदी में, गुजराती में, संस्कृत में, लोकल लैंग्वेजेस में, फाइन। लेकिन एंग्लिस्टिक मानते थे कि नहीं, ये तरीका सही नहीं रहेगा, ये तरीका सही नहीं रहेगा। जो भारत का बच्चा है, इंडिया का जो बच्चा है, उसको, उन सबको आप एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन स्टाइल में ही दो, इंग्लिश एजुकेशन ही दो, राइट? क्योंकि वो ये मानते थे कि हमारा जो लाइक आवर एजुकेशन इज अनसाइंटिफिक एंड फुल ऑफ फ्लॉज। वो ये मानते थे कि इंडियन एजुकेशन इज अनसाइंटिफिक एंड फुल ऑफ फ्लॉज, राइट? फाइन। एंड दे वर हैविंग दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि अगर वेस्टर्न एजुकेशन मिलेगा तो ये लोग बाहर की दुनिया को समझ पाएंगे, ये लोग नए नए साइंटिफिक इनोवेशंस या एडवांसमेंट्स जो हो रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, वो देख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे, राइट? सो 2 माइंडसेट्स वर देयर, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट, राइट? फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, एंग्लिसिस्ट एजुकेशन सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड एंड एग्रीड, राइट? ठीक है, ब्रिटिशर्स ने लॉट ऑफ डिस्कशन डिबेट किया और बोला कि भाई सबसे बेस्ट जो रहेगा वो वेस्टर्न एजुकेशन ही रहेगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ही रहेंगे फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स, फॉर द जो भारत के बच्चे उनके लिए यही सही रहेगा, ठीक है? एंड इट वॉज एग्रीड एंड इट वॉज इम्प्लीमेंटेड। तो स्लोली दे स्टार्टिंग इम्प्लीमेंटिंग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, राइट? फाइन। तो दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओनली एंड दे प्लान्ड इन सच ए वे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ही ग्रो हों। उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो ग्रांट्स और फाइनेंशियल एड्स है वो सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को प्रमोट करेंगे, राइट? सो ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल एड्स वाज गिवन ओनली टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। नाउ बिकॉज ऑफ दैट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस स्कूल्स सफर्ड। जो हिंदी मीडियम स्कूल्स थे, गुजराती मीडियम स्कूल्स थे, मराठी मीडियम स्कूल्स थे, बंगाली मीडियम स्कूल्स थे, जितने भी लोकल लैंग्वेजेस के स्कूल्स थे वो सब सफ़र होने स्टार्ट हो गए, राइट? The numbers started decreasing, right? Fine. So this was a scenario because of grants and financial aids was given only to the English medium schools, right?
फाइन. पर इन द स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस, बट इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस स्टिल वर्नाकुलर लैंग्वेज स्कूल्स वे आर रनिंग, राइट, फाइन. लेकिन बड़े बड़े सिटीज़ जैसे कि अगर भी बोलो बॉम्बे है, मद्रास है, कलकत्ता है ना, इन सब जगह तो आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आ चुके थे, फाइन. नाउ इन 1835 विलियम बेंटिक, राइट, he passed a English Education Act. विलियम बेंटिक ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया 1835 में. इस एक्ट के तहत जितनी भी स्कूल्स रहेंगी वो सब इंग्लिश मीडियम में ही रहेंगी और सबको इंग्लिश मीडियम एजुकेशन से प्रमोट करना है, ठीक है. अब हुआ ये कि इस लॉ के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बढ़ गया इंग्लिश मीडियम स्कूल्स पे, ठीक है. यहाँ तक कि जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को सपोर्ट किया, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, उन्होंने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को प्रमोट किया. बोला कि हाँ ठीक है, आप प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट कीजिए इंग्लिश मीडियम में और सेकेंडरी भी स्टार्ट कीजिए इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, फाइन. सो लाइक वाइज, सो बिकॉज ऑफ दिस इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वे स्टार्टेड इन बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, पंजाब, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया एक्सेट्रा, ठीक है, फाइन. अब ये जो लॉ बनाया था उससे उन्हें फ़ायदा तो हुआ, लेकिन अभी भी इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि अभी भी नेशनलिस्ट लोग थे जो ये मानते थे कि ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं ये हमारे कल्चर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छे नहीं हैं. तो स्टिल दे वेर इंसिस्टिंग फॉर वर्नाकुलर एजुकेशन ओनली, राइट, एंड द लैंग्वेज शुड बी लोकल लैंग्वेजेस ओनली रादर देन इंग्लिश लैंग्वेजेस, ठीक है, फाइन. But in 1844 they passed a very important law. 1844 में इन्होंने एक लॉ पास किया और उस लॉ के तहत ये था कि भैया जॉब तो उन्हीं को मिलने वाली है जिनको इंग्लिश आता होगा, एंड इट्स कंपलसरी. मतलब गवर्नमेंट जॉब्स उन्हीं को मिलेगी जिसको इंग्लिश आता होगा, वरना नहीं मिलेगी. एंड दिस लॉ वॉज अ गेम चेंजर. इस लॉ के पास होने के बाद में देयर वॉज अ रश फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स. लोगों ने जाना, पढ़ना, एडमिशन लेना स्टार्ट किया इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ, राइट. ज़्यादातर लोगों ने अपना एजुकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी ये इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही करना प्रीफर करना स्टार्ट किया, राइट, बिकॉज ऑफ दिस लॉ. एंड दिस लॉ वॉज स्टेटिंग दैट ओनली गवर्नमेंट जॉब विल बी गिवन टू ओनली दोज पीपल who are having English, who have studied in English medium schools, right? So this was a game changer, and lot many children, lot many parents, they started focusing towards English medium schools, and it was a big setback. It was a very, very, very big setback for vernacular languages schools. अब vernacular language schools सिर्फ गाँव में, छोटे टाउन में यहाँ पे अच्छे से चल रहे थे, पर बड़ी सिटीज़ में इनका चलना मुश्किल हो गया था, राइट, फाइन, बिकॉज ऑफ दिस लॉ. नाउ हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये लोग ने काफ़ी सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को कि भाई आप प्राइमरी एजुकेशन इंग्लिश में दे रहे हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप प्रमोट कीजिए, आप करो, हम भी आपको सपोर्ट करते हैं. एट द सेम टाइम दे ऑल्सो सपोर्टेड ब्रिटिशर्स फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन, राइट. उसमें भी इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया कि नहीं आपके, दे सपोर्टेड ब्रिटिशर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन एट प्राइमरी लेवल, एट द सेकेंडरी लेवल. But at the same time, they played a very crucial role in the promotion of English studies at higher level also. They suggested Britishers कि सर आपने प्राइमरी एजुकेशन चालू कर दिया, आपने सेकेंडरी एजुकेशन चालू कर दिया, थैंक यू सो मच, एंड वी ऑल्सो सपोर्टेड यू एंड यू डिड अ ग्रेट जॉब, राइट. लेकिन सर वी आर रिक्वेस्टिंग यू, वी आर सजेस्टिंग यू टू स्टार्ट हायर एजुकेशन ऑल्सो in the English medium. And again, this was a big role played by the social reformers for India. Why? Because अभी तक जो एजुकेशन वो दे रहे थे, कौन? ब्रिटिशर्स जो एजुकेशन दे रहे थे वो बेसिक एजुकेशन था, बेसिक मैथ्स, बेसिक साइंस, बेसिक इंग्लिश, राइट. लेकिन हमारे सोशल रिफॉर्मर्स के सपोर्ट के कारण, उनके सजेशन के कारण, उनके रिक्वेस्ट के कारण हायर एजुकेशन भी ये लोग ने देना स्टार्ट किया. And it was a game changer because now actually now we started getting the exposure. अब हमें एक्चुअल साइंस, मॉडर्न साइंस जो फॉरेनर्स पढ़ रहे थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज पढ़ रहे थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज पढ़ा रहे थे, वो हमें पढ़ने का मौका मिला, राइट. वेस्टर्न एजुकेशन में मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मैथ्स, मॉडर्न आई कैन से
फिजिक्स, मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न बायोलॉजी, ये सब हमें पढ़ने का मौका मिला. इट वॉज गेम चेंजर बिकॉज वी गॉट the exposure towards science and technology in the right way and a bigger way now, right? Fine. Okay, so 1854 आते आते, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1854 आते आते हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स था, उनके रिक्वेस्ट और सजेशन के कारण ब्रिटिशर्स ने एक वुड्स डिस्पैच करके, एक एजुकेशनल डिस्पैच था जिसका नाम था वुड्स डिस्पैच, वो पास किया और इंडिया में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई, जैसे कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, राइट. ये सारी यूनिवर्सिटीज़ 1857 के बाद से इस्टेब्लिश होने स्टार्ट हो गई, राइट. फाइन. एट द सेम टाइम रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कलकत्ता में इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आपका मेडिकल कॉलेजेस भी इस्टेब्लिश होने स्टार्ट हो गए, जैसे कि बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में, लाहौर में एक्सेट्रा, राइट. फाइन. नाउ सोशल रिफॉर्मर्स not only suggested and requested the Britishers in the establishment of universities, but at the same time they also promoted women and girl education, right? मतलब जो फीमेल थे, जो गर्ल्स थे, जो वुमेन थे, जो बेचारे पढ़ नहीं पा रहे थे, जिनको पढ़ाई का मौका नहीं मिल रहा था, उनके लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया, काफ़ी प्रमोशन किया, काफ़ी वर्कआउट किया विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स ऑल्सो, राइट. उन्होंने खुद तो किया ही, लेकिन कई जगह पे उनको लग रहा था कि हम अकेले नहीं कर पाएंगे, तो दे टुक हेल्प ब्रिटिशर्स. और ब्रिटिशर्स को तो लगा कि हाँ भाई इन्होंने हमारी मदद की इन द स्प्रेडिंग ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल, तो वाई शुड नॉट वी हेल्प देम. तो उन्होंने उनकी बात भी सुनी और उनको भी सपोर्ट किया, ठीक है. तो इन दिस वे ड्यू टू बिकॉज ऑफ अवर सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वैद्यनाथ मुखर्जी, गर्ल्स एंड वुमेन एजुकेशन स्टार्टेड इन इंडिया, राइट. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट वॉज दैट. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा. मैंने आपको कहा था कि हमारे सोशल रिफॉर्मर्स ने रिक्वेस्ट किया, सजेस्ट किया ब्रिटिशर्स को कि आप यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस खोलिए, राइट. फाइन. एंड दे एक्सेप्टेड. लेकिन ब्रिटिशर्स का मन सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन देने का ही था. इसीलिए अगर आप देखेंगे टाइम ड्यूरेशन 1835 से लेके 1857 तकरीबन बोलूँगा तो 22 साल थे. 22 सालों तक उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया, राइट. क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट ये था कि वी वांट टू गिव ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन सो दैट वी कैन गेट चीप क्लर्क, चीप सिपॉइज, चीप एडमिनिस्ट्रेटर्स, चीप मैनेजर्स हु कैन हेल्प अस इन मैनेजिंग द बिजनेस विच इज गोइंग ऑन इन इंडिया. गेट व्हाट आई एम सेइंग? मतलब उनका माइंडसेट बहुत क्लियर था. उनका माइंडसेट ये था कि हमें सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन देनी है, क्योंकि ताकि हमें चीप क्लर्क मिल जाए, चीप सिपॉइज मिल जाए, चीप एडमिनिस्ट्रेटर्स मिल जाए, ताकि हम ये जो काम है, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा कंट्रोलिंग है, वो ढंग से कर पाए, राइट. हमें लोकल सपोर्ट मिल जाए, राइट, सो दैट वी कैन मैनेज एवरीथिंग ईजिली एंड कंफर्टेबली, राइट. फाइन. दैट वॉज द प्लानिंग ऑफ ब्रिटिशर्स, राइट. दैट वॉज द माइंडसेट ऑफ ब्रिटिशर्स. उनका ये माइंडसेट था, ये प्लानिंग था. ओके. नाउ ये उनका माइंडसेट था, बट उससे हमें भी फायदा हुआ, right. So this was the mindset of Britishers, right. This was the intention of Britishers, but because of that we also get the benefit. What benefit we got? हमें English language सीखने का मौका मिला. We got exposure of English language. हमें modern science, modern technology, right, वो जानने का मौका मिला. We got in touch with the world. We got to know about the world status. Our communication and interaction become faster and better. This was the benefit which we got due to Britishers, right. Britishers से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें वर्ल्ड एक्सपोजर मिल गया, हमें मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जानने का मौका मिल गया, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा बेहतर हो गया. दिस वॉज द एडवांटेज विच वी गॉट ड्यू टू ब्रिटिश एजुकेशन, ड्यू टू इंग्लिश एजुकेशन एंड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. ओके. नाउ इसका फ़ायदा तो हमने देखा, पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, और ड्रॉबैक्स बड़े गंदे थे, राइट. ड्रॉबैक्स ये थे कि आवर वर्नाकुलर लैंग्वेज स्कूल सफर्ड. जो हिंदी मीडियम स्कूल्स थे, गुजराती मीडियम स्कूल्स थे, बंगाली, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये मीडियम के स्कूल्स थे, वो सफ़र हो गए, बैडली दे सफर्ड, राइट. सेकेंड पॉइंट, दैट इंडियंस फेल्ट इन्फीरियर
वो अपने आप को छोटा कमज़ोर छोटा कमज़ोर और बेकार सा महसूस करने लगे, राइट। उनको लगा कि वर्ल्ड लेवल पर उनका कुछ कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। दे फॉरगॉट द कंट्रीब्यूशन विच वेर डन बाय भास्करा, आर्यभट्ट, पाणिनि, Sushruta, Patanjali, etc. They forgot it, right? At the same time, they forgot their glorious past and culture. वो अपना जो glorious past कल्चर था वो भूल गए, राइट। वो inferior, उनका विल पावर कमजोर हो गया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया, बिकॉज डे बाय डे and on daily basis Britishers were trying to prove that Western civilization is much more superior and better and Indian civilization is inferior and worst. ये Britishers prove कर रहे थे day by day, right, on daily basis, right. So this was the setback which Indian people got. I hope you understood. मतलब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नीचे चला गया था, राइट, एकदम डाउन हो गया था, ठीक है। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था हम क्या हैं। हमें हमारे जो पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, हम उन्हें भूल गए। हमें ध्यान ही नहीं आया कि हम किन के बच्चे हैं। हमें लगा हम बहुत नकारा से हैं, हम बहुत बेकार से हैं, हम कुछ नहीं है, वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। हमें ये महसूस होने लगा, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल वॉज ज़ीरो, पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। विल पावर वॉज ज़ीरो, पूरा विल पावर खत्म हो गया था। नाउ वी वेर सिंपली स्लेव एंड सर्वेंट्स। हम सिंपल स्लेव्स और सर्वेंट्स बन के रह चुके थे। फाइन, ओके। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ये सब जो हो रहा था, तो हमारे जो रिफॉर्मर्स थे और हमारे जो नेशनलिस्ट लोग थे, उनको ये रियलाइज़ हो गया। उनको रियलाइज़ हो गया कि हमारे जो यंगस्टर्स है, हमारे यूथ है, दे आर फीलिंग इन्फीरियर, दे आर नॉट गेटिंग अवेयरनेस अबाउट द ग्लोरियस पास्ट एंड ग्लोरियस कल्चर। जो हमारा ग्लोरियस पास्ट था, हमारा ग्लोरियस कल्चर था, उसके बारे में यंगस्टर्स, यूथ को पता ही नहीं चल रहा। सो दे इंसिस्टेड फॉर नेशनल एजुकेशन एंड नेशनल एजुकेशन काउंसिल वॉज established in 1906 which can promote Western education as well as which can highlight the ancient Indian education also, right? So because of that, after 1906, lot many national institutes like Banaras Hindu University, right, Kashi Vidyapeeth, then this Bihar Vidyapeeth, right, Jamia Millia Islamia, and many more, right, and many more universities were established by the nationalist people, so that our youth, our manpower can realize the they can realize the glorious past, right? Understood what I am saying? Okay, fine. Okay, तो 1906 के बाद में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, जैसे अगर मैं बोलूँ तो BHU है, AMU है ना, लाइक बिहार विद्यापीठ है ना, शांति निकेतन है, रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी, राइट, शांति निकेतन है, राइट, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, they were started establishing, right? So okay, ये होने लगा. Now after that the education system was in a better condition, right? Fine. Ab I want to share about the role of Indian social reformers. आपको लगेगा कि यार राजा राम मोहन रॉय ने तो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, पर इन्होंने सपोर्ट करने का रीज़न था, इनका सपोर्ट करने का रीज़न था, इन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन इनको पता था कि अगर आज हम इनको सपोर्ट करेंगे तो कल इनसे हम मदद ले पाएंगे, राइट। लाइक राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज स्टैब्लिश किया था, है ना, 1828 में, और उनके जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, in the removal of social evils like child marriages, है ना, दूध पीती, and female foeticide, right, सती प्रथा, विडो रीमैरिजेस, इन सब में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और इस रोल प्ले करने के लिए इन्होंने ब्रिटिशर्स से मदद मांगी और ब्रिटिशर्स ने मदद की। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी ब्रिटिशर्स को मदद की थी इन द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। इट इज़ लाइक गिव एंड टेक, आप मुझे हेल्प करोगे तो मैं आपको हेल्प करूँगा।
तो ये जो सोशल रिफॉर्मर्स थे जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर विद्यासागर, इन्होंने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया इन द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, राइट. सो व्हेन दे रिक्वायर्ड हेल्प in the promotion of education for women and girls, in the eradication of social evils like female foeticide, child marriages, sati pratha, widow remarriages, British also supported them. I hope you understood, right? Fine. At the same time, many great reformers there, social reformers were there, like महाराष्ट्र में महर्षि गोविंद रानडे थे, राइट. महर्षि गोविंद रानडे ने स्कूल्स यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किए थे, राइट, Maharashtra for the education. At the same time, Maharshi Karve was there. He promoted, he established university for women, and that is called as Ascended University in today's time, right? Fine. उसी तरह से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा थे जिन्होंने बड़ौदा में एजुकेशन को प्रमोट किया, राइट. आपका ये महर्षि सदगुरु श्रद्धानंद जी थे, महर्षि श्रद्धानंद जी जिन्होंने कांगड़ी गुरुकुल स्टैब्लिश किया था, राइट. सैयद अहमद खान थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया. ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने एजुकेशन फील्ड में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, राइट, ताकि हमारे लोगों को वेस्टर्न एज वेल एज नेशनल एजुकेशन दोनों मिले, राइट. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर वॉज गांधी जी, राइट. गांधी जी की एक बहुत अच्छी बात ये थी कि इन्होंने समझा कि ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे हैं. ये समझ गए थे कि ब्रिटिशर्स वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ही प्रमोट कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट डेवलपिंग द लव एंड रेस्पेक्ट फॉर देयर ओन कंट्री, फॉर देयर मदरलैंड, यू नो. सो व्हाट गांधी जी डिड, गांधी जी प्रमोटेड बेसिक एजुकेशन एंड स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश एजुकेशन, राइट. एंड गांधी जी स्टार्टेड गिविंग एलिमेंट्री एजुकेशन लाइक नई तालीम, बुनियादी शिक्षा एक्सेट्रा, सो दैट the youth of the country can get basic and important education and they don't have to rely on the western education only, right. Gandhi was of the viewpoint that western education learning is okay, but to show them superior only is not the correct thing, right. आप ठीक है वेस्टर्न एजुकेशन आज के तारीख में ज़रूरी है, लेकिन आप अपने आप को सुपीरियर बताओगे, अपने आप को महान बताओगे, वो सही नहीं है. हम भी महान हैं. अब ये बताओ ना, हमारी कंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा मदरलैंड बहुत अमूल्य है, राइट. अब ये भी बताओ ना. बट ब्रिटिशर्स वे आर नॉट हाईलाइटिंग दैट, एंड दिस थिंग इज व्हाट गांधी जी रियलाइज्ड. तो उन्होंने बहुत बेसिक एजुकेशन पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया. बोला कि अगर वेस्टर्न एजुकेशन है ठीक है, उसके अगेंस्ट में हमारे पास बेसिक एजुकेशन है, हम स्किल बेस्ड एजुकेशन लें, राइट. स्किल बेस्ड एजुकेशन लें हम, राइट. फाइन. सो गांधी जी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर्स हु कॉन्ट्रीब्यूटेड in the field of education. Fine. Okay. Now one very important social reformer in the field of education was Rabindranath Tagore ji. Rabindranath Tagore was very important. उनका ये मानना था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर सोशल एनिमल वी कैन से, राइट. और जो हम एक्सेप्ट, एडॉप्ट, क्रिएट नेचुरल सराउंडिंग में कर सकते हैं वो हम 4 वॉल्स वाले क्लासरूम में नहीं कर सकते. बिकॉज ह्यूमन इज अ इनोवेटर, ह्यूमन बीइंग इज अ क्रिएटर, यू नो. एंड इफ यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम विच इज मेड अप ऑफ 4 वॉल्स, योर क्रिएटिविटी विल गेट स्टक. आपकी वो क्रिएटिविटी रुक जाएगी, यू नो. सो ही वॉज ऑफ दिस फेथ, ही वॉज ऑफ दिस बिलीव कि जो वेस्टर्न एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को क्लासरूम में बैठ के पढ़ाया जाए, है ना, ये गलत कॉन्सेप्ट है. बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए खुले वातावरण में, अंडर द ट्री, राइट. लाइक दे शुड बी गेटिंग एजुकेशन विथ नेचर, यू नो. मतलब लाइक आई कैन से इट शुड बी इन सम पार्क और सम गार्डन और इन अंडर द ट्री. जितना नेचुरल एनवायरनमेंट में एजुकेशन होगा, बच्चा उतना ज़्यादा अच्छा पढ़ेगा, उतना ज़्यादा अच्छा समझेगा, उतना ज़्यादा अच्छा क्रिएटिविटी उसकी बढ़ेगी. बिकॉज we are here to do something creative, and for creativity imagination and thinking is required, and for imagination and thinking we have to study in a very open environment, in a very creative environment, in a very lively environment which a 4 walls classroom cannot provide. This was the very important mindset of Rabindranath Tagore, and on this
basis only he established his university that was called as शांति निकेतन. उन्होंने शांति निकेतन का निर्माण किया और शांति निकेतन यूनिवर्सिटी में उसको नाम दिया गया शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी. उसमें हर तरह के सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, टेक्नोलॉजी हो, आर्ट हो, कल्चर हो, ड्रामा हो, म्यूजिक हो, लिटरेचर हो, एक्सेट्रा, सब कुछ पढ़ाया गया, राइट. और वो भी ओपन एनवायरमेंट में, ओपन स्पेस में, राइट. आई होप यू अंडरस्टूड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया, राइट. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू शेयर. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. ड्यूरिंग द 1951 सर्वे, when the survey was done in 1951, it was found that the contribution of Britishers was only 16.6% during their whole 200 years rule. 200 सालों में इनका कंट्रीब्यूशन जो एजुकेशन सिस्टम में था वो सिर्फ 16.16% था, राइट, एट इंडिया लेवल. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, they evaluated and they compared the contribution done by the Indian provinces and the contribution done by Britishers, right, in the area which were ruled by Britishers, right. तो जो इंडियन प्रोविंसेस जो इंडियंस रूल कर रहे थे वहाँ पे कंट्रीब्यूशन कहीं गुना ज़्यादा था rather than the contribution done by Britishers in which in those territories which were ruled purely by Britishers, right. Fine. जैसे कि अगर मैं बात करूँ वडोदरा की, तो वडोदरा में 28% लिटरेसी था. तो लिटरेसी रेट वॉज 16.6%. लिटरेसी रेट वॉज 16.6% ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स रूल. लेकिन सिर्फ अगर बड़ौदा की बात कही जाए तो 28% निकला. अगर मैं बात करूँ कोचीन और मैसूर की, राइट, तो वहाँ 35% लिटरेसी था. अगर बात करूँ ट्रावेनकोर की तो वहाँ 47% लिटरेसी था. इट मीन्स दैट द प्रोविंसेस विच वेर रूल्ड बाय द इंडियन रूलर्स वेर मच मोर लिटरेट, वेर मच मोर एजुकेटेड देन द प्रोविंसेस विच वेर रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स. इन शॉर्ट, आई कैन से the contribution of Britishers was there, but it was too less. Contribution तो था उनका पर बहुत कम. I hope you understood. और कैसे contribution हमारे सोशल रिफॉर्मर्स ने बढ़ाया ये मैंने आपको बताया. ब्रिटिशर्स का माइंडसेट क्या था? यस, ब्रिटिशर्स का माइंडसेट था कि इंडियंस को सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन दी जाए ताकि वो मामूली से क्लर्क, मामूली से एडमिनिस्ट्रेटर, मामूली से मैनेजर बन के रह जाएं और आगे ना आ पाए, राइट. ठीक है. लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनका ये माइंडसेट था कि बेसिक एजुकेशन तो हमें मिल गई लेकिन अब हमें हायर एजुकेशन भी चाहिए. तो दे रिक्वेस्ट एंड सजेस्टेड ब्रिटिशर्स टू गिव देम द हायर एजुकेशन. और मैंने आपको बताया था कैसे गिव एंड टेक था. जब सोशल रिफॉर्मर्स ने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को इन प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, तो ब्रिटिशर्स को भी सपोर्ट करना पड़ा इन द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन, like in the establishment of universities, in the establishment of engineering college, in the establishment of medical colleges. Understood? This was the scenario during British rule. तो ब्रिटिशर्स ने कंट्रीब्यूट तो किया लेकिन बहुत कम. I hope you understood. Thank you so much. We'll meet in the next class. Till that time, thank you so much. Bye.